आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। I started noticing excessive hair fall around 5-6 years back. Noticeable मुझे तब हुआ जब मेरे फ्रेंड्स या मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स दे टोल्ड मी कि अभी आपकी तो हेयर लाइन रिसीड हो रही है. I finally decided to do my hair transplant of QHT because one, they are very professional. That is the only pain that you will experience. After that, the doctors are very good. They are very friendly. Hello everyone, my name is Ayush and I did my hair transplant on 10th of July. So today is my fourth PRP. I started noticing excessive hair fall around 5-6 years back, and I think that mera hair fall is mainly due to the profession which I am and some genetics also. Noticeable मुझे तब हुआ जब मेरे फ्रेंड्स या मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स दे टोल्ड मी कि अभी आपकी तो हेयर लाइन रिसीड हो रही है. तो एंड ऑल्सो whenever I took shower, I used to see excessive hairs on my hands when I used to shampoo. So इन सब कारणों से I got a bit stressed and then I decided that yes, something needs to be done. उसके बाद जैसे सभी लोग हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जो जूझते हैं, they do home remedies. तो वही सब मैंने भी किया, थोड़ा बहुत home remedies. I consulted a few doctors, then took medicines, but it was all, I think it was all temporary. Like 1-2 महीने तक मेरा हेयर फॉल रुकता था, but it was not a permanent solution to it. Then finally, I decided to do hair transplant because you only regret the chances that you don't take in life. So finally, then I decided that yes, now I'll go for the hair transplant, and I told my parents. My parents were a bit skeptical about it in the initial stages, like everyone else's. They did say that don't do it; it's not that big an issue. But slowly, they also understood that it's just a minor surgery, not a big procedure, and then they agreed to it, and then I did it. जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्लिनिक्स दैट वर देयर इन माय होम सिटी आल्सो एंड दिल्ली, मुंबई एंड आल्सो अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज. I finally decided to do my hair transplant of QHT because one, they are very professional, and also the result here which I've seen in the YouTube also from my friends and the past record if you take, then QHT has quite an impressive record. So I decided to do from QHT. So जब मैं अपना ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक आया था, so the doctors were very professional. उन्होंने पूरा प्रोसीजर मेरे को पहले बिठा के समझाया that okay, this is how the surgery is going to do. It is going to take 2 to 3 days, proper 2 to 3 days from morning 8 o'clock till evening 6 to 7 o'clock. So when I came here for the first time, the doctors were very professional. They guided me very well and they told me the entire procedure. Then first step in the transplant procedure is they draw a hairline on your head and then they see कि ये hairline आप पे कैसी लग रही है. The surgery that I opted for is called a UHT technique, and a total of around 5,000 grafts were implanted, which again was a painless procedure. The only very minor pain that we experience is the time when they give you anesthesia on your head. That is the only pain that you will experience. After that, the doctors are very good. They are very friendly. They will keep talking to you and they will keep asking you whether or not you're feeling the pain. After implanting 5,000 grafts, you will again come to the doctor where he will guide you for the next 2-3 days, as they are the most crucial days of the transplant. They will tell you in return what all the procedures you have to follow once you go home. थोड़ा स्वेलिंग का जो मेरे को इश्यू था, आई डिस्कस विद द डॉक्टर्स एंड दे टोल्ड दैट थोड़ी बहुत स्वेलिंग होना इज नेचुरल. दे पुट अ बैंडेड ऑन योर फोरहेड सो दैट द स्वेलिंग डज नॉट रिसीड, व्हिच इवेंचुअली इट डिड. आफ्टर 4-5 days द स्वेलिंग आल्सो went away. उसके बाद जब आप once you are at your home, and then every day the QHT team will call you, they will text you on WhatsApp, they will personally message you on your number whether or not you are feeling okay, all is okay, any concern. They will ask your everyday update of the head, and also when you have to wash your hair and how you have to wash your hairs. My overall experience in QHT is very nice, and I would advise everyone who is thinking of getting a hair transplant, or who is in a dilemma that whether or not you should go ahead with the transplant or not.
My personal suggestion to you guys is you should definitely go for it. It's a completely painless procedure, and there are many myths. Until the time we don't actually come to the clinic and ask for the doctors, there are many myths in our mind that will remain there in your mind if you do not ask and do something about it. In the end, I just want to say to you, HT, that you're doing a good job and keep up the good. अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। एक अंडर कॉन्फिडेंस रहता था कि बाल अच्छे नहीं हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी की ज़्यादा पार्टी में होने का मन नहीं करता कि 4 लोगों के सामने जाना है, लोग देखते हैं, लोग नोटिस करते हैं। एज हुई है 28-29 एज है और ऐसा लगता 38-37 है, 39 है, ऐसी एज लगती। और 8 महीने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे रिव्यू भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरी फैमिली, जो भी मतलब मुझे देखता है, जिसने मुझे पहले देखा और जो मुझे अब देखता है, एकदम से थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि इतना बेहतरीन रिज़ल्ट। हेलो, मेरा नाम चौधरी चंद्रकांत है। मैं बेसिकली आगरा का रहने वाला हूँ और मैंने 8 महीने पहले अपना यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था QST क्लिनिक हरिद्वार में। आज मेरे ट्रांसप्लांट को 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपनी 4th PRP के लिए यहाँ पे आया हूँ। और 8 महीने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे रिव्यू भी बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरी फैमिली, जो भी मतलब मुझे देखता है, जिसने मुझे पहले देखा और जो मुझे अब देखता है, एकदम से थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि इतना बेहतरीन रिज़ल्ट। 8 महीने पहले भी मैं था, 8 महीने बाद भी मैं हूँ और बालों में इतना चेंजेस, बहुत शानदार रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लगा है। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत अप हुआ है इस चीज़ से। मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। 10 अगस्त 2024 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे जो 10 दिन का मैंडेटरी एंटीबायोटिक मेडिसिन रहता है वो मैंने लिया। और उसके 20 दिन बाद, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट के पूरे 1 महीने बाद से मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई, जिसमें मैंने कंटिन्यू मिनॉक्सिडिल, एक हेयर विटामिन और एक फिनेस्ट्राइड वो लिया। उसके 1 महीने के बाद मैंने सीरम स्टार्ट किया। सीरम को मैं इतना कंटिन्यू नहीं लिया हूँ, मिनॉक्सिडिल में कंटिन्यू लिया हूँ। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के करीब 15-20 दिन के बाद ही मेरा श्रेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। तो श्रेडिंग फेज स्टार्ट हुआ एकदम से, जैसा पहले कंडीशन थी वैसी कंडीशन होने लगी। सारे बाल टूट टूट के गिरने लगे
तो मैं एकदम से डर गया था, चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। जबकि मुझे पहले ही ये चीज़ बताई गई थी, मुझे एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया था जिसमें ये चीज़ पहले से ही मेंशन थी कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद या 20 दिन बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होगा और वो 2-3 महीने तक रह सकता है। किसी का 2 महीने रहता है, किसी का 3 महीने रहता है। तो मेरा भी वही 2 महीने तक करीब शेडिंग फेज रहा। उसके बाद से फिर मेरी परमानेंट ग्रोथ स्टार्ट हुई और फिर ग्रोथ आती गई, डेंसिटी भी बढ़ती गई। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत शानदार लगने लगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मेडिसिन का ये है कि 1 साल तक के लिए मेडिसिन दी जाती है हमको कि 1 साल आपको मेडिसिन खाना है। उसके बाद से मेडिसिन बंद कर दी जाती है, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मिनॉक्सिडिल जैसे कि आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, इस तरह से मिनॉक्सिडिल आप कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो आपकी हेयर की केयर होती रहेगी अच्छे से। आप ना भी यूज़ करें तो वो अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनॉक्सिडिल से हेयर केयर अच्छी हो जाती है। जैसे कि हम डेली बालों को शाइन करने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही बालों की ग्रोथ के लिए हम मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट होने से एक ऐसा फील होता है जैसे कि नई ज़िंदगी सी मिली है। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले सारी कुछ चीज़ें ठीक थी, कॉलेज में था, कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जॉब मिली, जॉब पे गया, सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। एक अंडर कॉन्फिडेंस रहता था कि बाल अच्छे नहीं हैं, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी की ज़्यादा पार्टी में होने का मन नहीं करता कि 4 लोगों के सामने जाना है, लोग देखते हैं, लोग नोटिस करते हैं। एज हुई है 28-29 एज है और ऐसा लगता 38-37 है, 39 है, ऐसी एज लगती। तो इससे बहुत अंडर कॉन्फिडेंस रहते थे, मतलब लोगों के सामने जाना, लोगों से ज़्यादा बात करना, ये बहुत इशू रहता था। और अभी भाई सुनने की एज में अंकल भी बोलते थे कुछ लोग, बच्चे अंकल बोलते। अब बच्चे क्या जाने कि इनका कितनी एज है क्या नहीं, बच्चों को तो जो देखेगा वही बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बाल आए हैं, ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में भी सब लोग बोलते हैं सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर बहुत अच्छा है, सर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत तारीफ़ मिलती है। सब लोग बोलते हैं कि सर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो सर सब पूछते हैं कि सर कहाँ से कराया है, हमको भी बताओ, हम भी कराएंगे। तो इस तरह कॉन्फिडेंस बहुत अप रहता है। बालों की तरफ से तो कुछ सोचना होता ही नहीं है कि क्या सोचना क्या नहीं सोचना। उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि मैं सैलून जा रहा हूँ, सैलून वाले से बोलता हूँ कि ये हेयर स्टाइल कराना है, वो हेयर स्टाइल कराना है, तो वो भी बोलता है कि सर आपके बाल तो है ही नहीं इतने, आप हेयर स्टाइल कुछ भी कराना चाहते हैं, हेयर स्टाइल भी तो बाल होंगे उसी हिसाब से होती है। तो मैं कहता ठीक है कि मैं पहले बाल ही लाता हूँ, उसके बाद हेयर स्टाइल कराऊँगा। तो अभी बाल हैं, जैसा चाहो तैसा हेयर स्टाइल करा लो, छोटे करा लो, बड़े करा लो, बहुत अच्छा लगता है। एकदम से नई ज़िंदगी सी मिली है। मैं ऐसा लगता है यंग हो गया हूँ, कम से कम नहीं तो 5 साल तो जवान हो ही गया हूँ पहले से। अभी तो अप्रोक्स 25 की एज लगती है और उस टाइम तो ऐसी लगती थी 38-39। बहुत बुरा फील आता था, बहुत बेकार लगता। जॉब है, सब कुछ है, वही इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन बाल नहीं था बस। तो अभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार रिजल्ट रहा है मेरा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपना 4th PRP के लिए आया हूँ, तो मैं आप लोगों को कुछ PRP के बारे में बताना चाहूँगा। PRP क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है। तो PRP का मीन्स होता है कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। जो प्लाज्मा हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने ब्लड में से, वो प्लेटलेट्स रिच होता है, उसमें प्लेटलेट्स अच्छे होते हैं। उसको निकाल के फिर हम अपने स्कल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारे स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, हमारे उससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर थिनिंग हो रही होती है तो वो हेयर थिक होने लग जाते हैं और हेयर हेल्दी होते हैं। तो इसलिए PRP ज़रूरी रहती है। PRP यही ज़रूरी नहीं है कि जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसी को PRP कराना है। PRP कोई भी करा सकता है। किसी को हेयर हैं लेकिन हेयर थिन हो रहे हैं तो वो भी PRP ले सकता है। तो PRP से उसको भी हेल्प मिलेगी, उसके हेयर अच्छे से ग्रो करेंगे, थिक होंगे, डेंसिटी बढ़ेगी
तो पीआरपी कोई भी करा सकता है। पीआरपी के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है वही कराए, लेकिन जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसको तो पीआरपी करानी ही चाहिए, क्योंकि बगैर पीआरपी के वो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। वो पीआरपी होती है तो उससे स्कल्प में प्लाज्मा जाता है, प्लाज्मा से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों की थिकनेस बढ़ती है। तो ट्रांसप्लांट वाले को तो करानी ही चाहिए, और वैसे कोई भी करा सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ट्रांसप्लांट कराया है तो ही करानी है। मेरे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रखा था, मेरा स्कल्प बहुत ज़्यादा खाली हो रखा था, तो मुझे टोटल 5000 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे। और 5000 ग्राफ्ट्स के बाद आप मेरी कंडीशन देखिए, ओवरऑल पूरे हेड की कंडीशन देखिए, अभी आपको कोई खाली जगह नहीं दिखेगी इतनी। उस टाइम पे मेरा पूरा स्कल्प खाली हो रखा था, इतना सामने से तो पूरा खाली था। तो यही मेरा रिजल्ट है, ये मेरा टोटल 5000 ग्राफ्ट्स का है। आप मेरे पहले की फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, पहले की जो वीडियोज़ हों उसमें देख सकते हैं। मेरा काफ़ी हेयर फॉल था, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रखा था, तो अभी मेरा काफ़ी भरा हुआ है, अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, ये है मेरा रिजल्ट। बाकी अभी मुझे और भी पीआरपी सेशंस के लिए आना होगा। कभी भी जब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मुझे लगेगा कि मेरा हेयर सही से ग्रो नहीं कर रहा है या मेरा हेयर थिनिंग हो रहा है, तो मैं पीआरपी तो कभी भी ले सकता हूँ। तो आगे पीआरपी सेशन के लिए कभी भी आता हूँ तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि हाँ मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, मुझे कितना अच्छा लगा है। तो आगे भी आप देखते रहिएगा। और जिसको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वो QST क्लिनिक हरिद्वार और QST क्लिनिक हैदराबाद, ये 2 ब्रांच हैं, आप सीधा आ सकते हैं, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। डॉक्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिस टेक्निक से करते हैं वो टेक्निक बहुत अच्छी है। बाकी आगे नेक्स्ट पीआरपी में आपसे मुलाकात करते हैं, बताते हैं फिर अपना और आगे के एक्सपीरियंस के बारे में। अभी के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।